Good morning to all of you. Am I audible? Am I audible? So today we have to start a new topic, and what we have discussed till now was the basic concepts like sources for the reconstruction of Indian history. This we have discussed. Sources for the reconstruction of Indian history. This we have discussed. Many parts or fragments of this topic will also be discussed later. That's just have when you will read Buddhism and Jainism, so Buddhist literature, Jain literature, there are so many things that will read later. The second part that we have discussed, that geographical factors, how they influence the historical developments. The third concept was the concept of prehistory, proto-history, and history. This we have discussed. In prehistory, that is the Stone Ages, okay, we have discussed about Paleolithic era, Mesolithic era, and Neolithic era. Okay. Now there are two more concepts that we need to understand before we enter into this topic, that is Indus Valley civilization. One concept is the concept of Chalcolithic cultures, because whenever you will read R.S. Sharma NCERT book, you will get these terms very frequently. So it is very important to understand what is Chalcolithic culture. Okay, Chalcolithic culture क्या है ये समझना होगा. Okay, the second important term is megalithic cultures. Okay, megalithic cultures. These are two important terms that we need to understand. Chalcolithic culture समझना है और megalithic culture समझना है. Okay, तो आज की क्लास में सबसे पहले तो हम इन दोनों टॉपिक्स को समझते हैं, Chalcolithic cultures and megalithic cultures ये क्या है. So we are going to start with this topic, that is Chalcolithic cultures in India. Okay, so this is the topic today, Chalcolithic cultures in India. Chalcolithic cultures in India. Now, when I was discussing a general timeline with you, I have discussed that after Stone Ages, we see Chalcolithic cultures. जैसे Stone Ages में there was three phases ना, Paleolithic age or Paleolithic era, that was 5 lakh to 10,000 BC. Okay, and then we have discussed about Mesolithic era, that is 10,000 BC to 8,000 BC, and then we have discussed about Neolithic era, that was 8,000 BC to 4,000 BC. Okay, this period we have already discussed. Now, what is the time period of Chalcolithic cultures in India? Chalcolithic cultures. So first I am giving you a general timeline, and this general timeline is what? Okay, so it is extending from 4,000 BC to 1500 BC. This is the time period of Chalcolithic culture in India. Okay, and this is not one single culture. This is a set of many rural cultures, and that's why we are calling it Chalcolithic cultures. तो जो सेट है आगे बताऊंगा, तो अलग अलग कल्चर्स हैं इसमें और सबकी टाइम पीरियड वैरी करती है. सो वी हैव जनरली अंडरस्टूड कि ये एक जनरल टाइमलाइन है, इसके अंदर बहुत सारी Chalcolithic कल्चर्स आ जाएंगी. बट in the same period we see there is an important development, and that is urban development. और वो क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, द अर्बन फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज व्हाट? अर्बन फेज की मैं बात कर रहा हूँ. सो इट वाज 2350 BC टू 1750 BC. कोई भी जगह अचानक अर्बनाइजेशन तो हो नहीं जाता, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो ये हम केवल और केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन के अर्बन फेज की बात कर रहे हैं. बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि व्हेन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट civilization, Indus Valley civilization के केस में we are talking about civilization, and here we are talking about cultures. So we should understand the general meaning of civilization and culture. आगे मैं डिटेल में बताऊंगा इन डिटेल इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक में
but for right now you can understand it like this, that whenever we are talking about civilization, जब भी हम civilization की बात कर रहे हैं, whenever we are talking about civilization in these particular chapters, technical meaning तो बहुत सारी चीजें हैं, तो civilization का मतलब it is indicating or denoting towards emergence of cities or the towns. तो civilization is doing what? Civilization indicate कर रहा है, it is indicating towards urbanization of cities or the towns. तो इसका एक सिंपल सा रिलेशन किसके साथ हो जाएगा? अर्बनाइजेशन के साथ. Whenever we are talking about civilization here, we are talking about urbanization. And urbanization simply means what? Emergence of cities and towns. Emergence of cities and towns. This is a simple meaning of urbanization. For example, we are using this word urbanization in the context of Indus Valley civilization. हमने इंडस वैली कल्चर नहीं बोला. what is the term that we are using? That is Indus Valley civilization. अब बताओ, in Indus Valley civilization, what was the cultural life of the people? How can we get information about the cultural life of the people? This is very simple. Remains of entire cities have been found. Remains of forts have been found. Remains of entire cities have been found. Okay, it means that whenever we are talking about Indus Valley civilization, we are talking about a specific cultural stage. ठीक है, specific cultural stage, और this specific cultural stage, ठीक है, time period is 2350 BC to 1750 BC. यानी कि जब भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक कल्चरल स्टेज की. दिस इज अ स्पेसिफिक कल्चरल स्टेज, ठीक है, और इस कल्चरल स्टेज की वो स्पेसिफिक फीचर और कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इट इज द फर्स्ट सिविलाइजेशन not only in Asia, but it is one of the first civilization in the world also. It is associated with the cities, and plus the people were literate also. They were also knowing how to write. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. ये अलग बात है कि उन्होंने क्या लिखा हम पढ़ नहीं पाए, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, okay, because this is specific, because it is associated with cities. It is associated with cities. Associated with cities. Cities से जुड़ा हुआ है. Plus the society was a kind of literate society. Society कैसी थी? Literate society. Literate society क्यों थी? Because the people were knowing how to write. लिखते कैसे थे? ठीक है. They have a particular script also. How to write? They had a script also. That script is called pictographic script. ठीक है ना? But हम इसको डिसिफर नहीं कर पाए. वी फेल टू डिसिफर इट. ठीक है. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है ना? एंड व्हाट इज द सेंट्रल एरिया और द जोन दैट दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज कवरिंग? इट वाज सिंध रीजन. पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है वो है. इसके अलावा आफ्टर 1947 पार्टीशन के बाद बहुत सारे साइट्स इंडिया में भी हैं. लाइक राखीगढ़ी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटलमेंट्स इन इंडिया. बट हड़प्पा, मोहनजोदारो, दे ऑल लाइज इन पाकिस्तान. वो पाकिस्तान पंजाब सिंध प्रोविंस में चले गए. सो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. ठीक है, कि वो सारे के सारे कहाँ चले गए? पाकिस्तान सिंध प्रोविंस में चले गए. नाउ इन दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हाट वी सी, क्या देखते हैं इस इंडस वैली सिविलाइजेशन? देयर आर लार्ज सिटीज. लार्ज सिटीज, लार्ज सिटीज भी हैं, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदारो है. इनकी कैटेगरी क्या है? राखीगढ़ी है. दे ऑल आर लार्ज सिटीज. ठीक है. और जब हम इस लार्ज सिटीज के बाहर देखते हैं, सो व्हाट वी सी दैट इन द पेरिफेरी सेंटर, इन द सेंट्रल जोन, व्हाट वी सी? लार्ज सिटीज. यानी कि सबसे पहले एक सिटीज की कैटेगरी क्या हो गई? लार्ज सिटीज. एंड देन वी सी दैट it is surrounded by irregular network of smaller cities. ठीक है, इसमें चनहुदड़ो जैसा शहर भी है. ठीक है ना? सो लार्ज सिटीज के साथ साथ क्या है? इट ऑल्सो हैज एन इरेगुलर नेटवर्क ऑफ स्मॉलर सिटीज. जैसे अलग अलग सिटीज अलग अलग एरिया में है. दिस इज व्हाट? इरेगुलर नेटवर्क ऑफ स्मॉलर सिटीज. नेटवर्क ऑफ
स्मॉलर सिटीज। जैसे आज क्या है, देयर आर मेट्रोपोलिस, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, ओके, बेंगलुरु जैसे शहर भी हैं, बट अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर स्मॉलर सिटीज लाइक संभल ऑल्सो, ठीक है, बुलंदशहर ऑल्सो, मेरठ ऑल्सो, छोटे छोटे शहर भी है, ठीक है। तो इन द तो आज क्या है, टुडे वी आर इन अ सिविलाइजेशन स्टेज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल वर आल्सो इन दैट स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन जहां बिग सिटीज भी हैं, और इसके अलावा देयर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ स्मॉलर टाउन्स एंड द सिटीज, ठीक है। नाउ व्हाट वी सी इज दैट, आप बताओ, जैसे इफ यू गो आउट, फॉर एग्जांपल दिल्ली इज द सेंटर कैपिटल, तो दिल्ली से अगर आप 100 किलोमीटर्स बाहर चले जाओगे, 200 किलोमीटर्स बाहर चले जाओगे, पेरिफेरी एरियाज में यू विल फाइंड दैट 100 किलोमीटर नहीं, ज्यादा नहीं, 50-60 किलोमीटर बाहर जाने की जरूरत है, यू विल सी देयर आर स्मॉलर विलेजेस, विलेज कम्युनिटीज आल्सो। आज के टाइम में भी है, देयर आर स्मॉलर विलेज कम्युनिटीज, तो उस समय भी रहा होगा। दिस इज बेसिक, वेरी बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड कि लार्ज सिटीज और स्मॉलर सिटीज के आ जाने से जो विलेज कम्युनिटीज हैं, एग्रेरियन कम्युनिटीज हैं, जो पेरिफेरीज पे रहती हैं, वो तो नहीं खत्म हो जाएंगी ना। सो द सेम वाज ट्रू विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो, कि इसके बाहर देखते हैं तो इन पेरिफेरल रीजन व्हाट वी सी, फॉर एग्जांपल इन पेरिफेरल रीजन इन मेनी एरियाज व्हाट वी सी that there are a smaller village communities, there are a smaller agrarian communities or village communities, agrarian smaller communities or village communities outside these peripheral areas, in peripheral areas के बाहर smaller village communities भी रहती हैं, they are rural communities। तो देखो, whenever we are using the word culture, जब भी हम culture word use करते हैं तो we will have to associate with rural communities, ठीक है ना, इसको रूरल कम्युनिटीज के साथ जोड़ के देखना है। सो दीज स्मॉलर रूरल कम्युनिटीज और एग्रेरियन कम्युनिटीज इन द पेरिफेरल एरियाज में जो छोटे छोटे रूरल कम्युनिटीज हैं, वी विल कॉल देम कैलकोलिथिक कल्चर्स। यहाँ पे इसी को हम क्या कह रहे हैं, कैलकोलिथिक कल्चर्स, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस वर्ड कैलकोलिथिक, दिस इज कॉल्ड कैलकोलिथिक कल्चर्स, ठीक है। और ये कैलकोलिथिक कल्चर्स मीन्स स्मॉलर village communities or the rural communities or the cultural settlements, ठीक है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के अर्बन फेज के पहले भी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ भी थी, ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भी एग्जिस्ट करती थी, ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो कैलकोलिथिक कल्चर्स का मतलब आप समझ गए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाई वी आर यूजिंग दिस वर्ड कल्चर। आई एम यूजिंग दिस वर्ड कल्चर। तो कल्चर मीन्स व्हाट, रूरल communities, agrarian communities that were existing in the peripheral areas, that were existing in the peripheral areas। दूसरी बात हमने क्या समझी कि this is the urban phase of Indus Valley civilization, that is 2350 BC to 1750 BC। ये क्या है, अर्बन फेज है, क्लियर। तो शहर अचानक थोड़ी ना बन गया होगा, ठीक है, कि अचानक एक दिन स्विच ऑन हुआ और शहर आ गया, ऐसा नहीं होगा। यानी कि बिफोर द अर्बन फेज ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट मीन्स prior to urban phase of IVC, prior to urban phase of IVC, what we see that many Chalcolithic cultures were also existing। बहुत सारे Chalcolithic cultures exist भी कर रहे थे। Many Chalcolithic cultural settlements, many Chalcolithic cultural settlements were also existing, many Chalcolithic cultural settlements were also existing। दूसरी बात समझो, अच्छा बताओ, Chalcolithic cultural settlements मतलब रूरल नेटवर्क, तो शहर बनता कैसे है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब बहुत सारे रूरल नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, तो फाइनली अ स्टेज विल कम व्हेन अर्बनाइजेशन विल बी प्रोमोटेड, कि अर्बनाइजेशन प्रोमोट होगा। तो क्या हम इस बात को कह सकते हैं दैट इन द ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी that these Chalcolithic cultural settlements could have played a major important role। ये Chalcolithic cultural settlements जो है, इनके इंटीग्रेशन का भी रिजल्ट हो सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन।
यस और नो? यस, वी कैन से कि रूरल नेटवर्क्स जब एक्सपैंड होंगे, जब इंटीग्रेट होंगे, तो उससे क्या होगा? फाइनली एक अर्बन सिविलाइजेशन डेवलप हो सकती है. इट मींस देयर माइट बी अ डेफिनेट लिंक बिटवीन, there might be a definite link between, we can say that there might be a definite link between Chalcolithic cultures. There might be a definite link between Chalcolithic cultures and origin of IVC. इन दोनों के बीच में एक लिंक जरूर हो सकता है. There might be a definite link between Chalcolithic cultures and origin of Indus Valley civilization. और अगर हम कैलकोलिथिक कल्चर्स, अलग अलग कैलकोलिथिक कल्चर से आगे मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, अगर हम कैलकोलिथिक कल्चर्स से इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, सो दिस विल सजेस्ट विच काइंड ऑफ थियरी? लोकल ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. यानी इंडिया में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में अर्बनाइजेशन था, इस अर्बनाइजेशन को बाहर से आए हुए लोगों ने प्रमोट नहीं किया. इसका ओरिजिन क्या था? इट हैड इट्स इंडिजिनस ओरिजिन. ठीक है ना? तो अभी जो बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में, उनका एक पर्सपेक्टिव ये भी होता है, जैसे आप द हिंदू या एक्सप्रेस पढ़ोगे, सो दे टॉक अबाउट प्रॉक्सिमिटी बिटवीन कैलकोलिथिक कल्चर्स एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है? तो ये न्यूज़पेपर आर्टिकल्स का एक बड़ा ही पॉपुलर एरिया है. Many researches were done from time to time, and they talk about proximity between different Chalcolithic cultures. Proximity between different Chalcolithic cultures and Indus Valley civilization. न्यूज़पेपर में इस पे बात की जाती है. प्रॉक्सिमिटी बिटवीन कैलकोलिथिक कल्चर्स एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन. गांव बनते बनते शहर होता है, बस इतनी बात याद रखना. और ऑन दिस बेसिस दे ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट? They try to explain indigenous origin of IVC. Indigenous origin of IVC. यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन बनी कैसे? तो इन्हीं कैलकोलिथिक कल्चर से. सपोज दिस इज कैलकोलिथिक कल्चर ए, ये दीज आर स्मॉलर रूरल कल्चर्स, कैलकोलिथिक कल्चर्स ए बी सी डी ई. वी आर नेमिंग दीज कल्चर्स. ठीक है ना? अलग अलग कैलकोलिथिक कल्चर्स हैं. दिस माइट बी पॉसिबल कि इस कैलकोलिथिक कल्चर में, ठीक है, जो रूरल कम्युनिटीज है, इनके एक्सपेंशन और इंटीग्रेशन का रिजल्ट हो सकता है नेटवर्क ऑफ सिटीज और द टाउन्स. ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है. दूसरा कॉन्सेप्ट समझो. व्हेन इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइंड इन द ईयर 1750 बीसी. क्यों डिक्लाइन हुआ, इस पे भी हम आगे बात करेंगे. ठीक है ना? 1750 बीसी में क्या देखते हैं? वी सी द डिक्लाइन ऑफ आईवीसी. इसमें हम क्या देखते हैं? डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. We see the decline of Indus Valley civilization. So when Indus Valley civilization declined in 1750 BC, it was what? It was decline of urban phase of Indus Valley civilization. ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के अर्बन फेज का डिक्लाइन था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडस वैली सिविलाइजेशन 1750 बीसी में क्या है? दिस इज द डिक्लाइन ऑफ अर्बन फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. अच्छा, जब अर्बन फेज खत्म हो जाएगा, तो बताओ, सब कुछ खत्म हो जाएगा कि पेरिफेरल एरियाज में रूरल कम्युनिटीज एग्जिस्ट करेंगी? ऑब्वियसली अर्बन फेज विल एंड एंड इन पेरिफेरल एरियाज द रूरल कम्युनिटीज विल एग्जिस्ट. यहाँ पे फिर से हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? कैलकोलिथिक कल्चर्स. यानी सिविलाइजेशन स्टेज के डिक्लाइन के बाद भी क्या है? कैलकोलिथिक कल्चर्स आर एग्जिस्टिंग. ओके, this is the point. So after the decline of IVC also, what we see, existence of Chalcolithic cultures. यहाँ हम क्या देखते हैं? After the decline of IVC also, we see what? Existence of Chalcolithic cultures. Existence of Chalcolithic cultures. तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले भी कैलकोलिथिक कल्चर्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भी कैलकोलिथिक कल्चर्स. हिस्टोरियंस क्या ओपिनियन है उनका? कि देयर इज अ प्रॉक्सिमिटी और अ लिंक बिटवीन कैलकोलिथिक कल्चर्स एंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. कैलकोलिथिक कल्चर्स और ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दोनों के बीच में क्या है? एक इंपॉर्टेंट लिंक है. ठीक है? एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंपॉर्टेंट लिंक, हिस्टोरियंस ट्राई टू एक्सप्लेन द इंडिजिनस ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि कैसे ये सिविलाइजेशन का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो. ठीक है?
कि लोकल ओरिजिन है, इंडिजिनस ओरिजिन है, ग्रेजुअली, ठीक है ना, डिफरेंट जो लोकल कल्चर्स हैं इनके इंटीग्रेशन से, एक्सपेंशन से इंडस वैली सिविलाइजेशन बनी है, वो ये बताने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज, व्हेन वी लुक एट द टाइम पीरियड, जब हम इस टाइम पीरियड को देखते हैं, फिर से देखो, जब जब भी आप इस टाइम पीरियड को देखते हो तो कैलकोलिथिक कल्चर्स के लिए आपने एक टाइम पीरियड क्या बोला, जनरल टाइम लाइन, दिस इज 4000 BC टू 1500 BC, जिसमें वेरियस कैलकोलिथिक कल्चर्स आर एग्जिस्टिंग। अभी मैं आपको नाम भी बताऊंगा, पहले एसेंस समझो। बहुत सारी कैलकोलिथिक कल्चर्स एग्जिस्ट कर रही थी। नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी के बीच में तो है, दिस अर्बन फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी के बीच में है, 2350 BC टू 1750 BC। बुक्स में आपको 2600 टू 1900 भी मिलेगा, तो वो भी गलत नहीं है, उसको भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये अब देखो क्या है, कैन वी सी दैट देयर इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन एट द सेम टाइम। इस सेंटेंस को ध्यान से समझना। बाय लुकिंग एट दिस स्केच, कैन यू से देयर इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन एट द सेम टाइम? हाँ। कल्चर में किस कल्चर की बात कर रहे हैं? कैलकोलिथिक कल्चर, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले भी है, बाद में भी है, और उस दौरान भी है, क्योंकि पेरिफेरल एरियाज में क्या होंगी, रूरल कम्युनिटीज तो होंगी ना। ओके, सो दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। व्हाई इंपॉर्टेंट? राइट दिस बिकॉज वी सी हियर, ये स्केच ड्रॉ करने के बाद लिखना कि इस स्केच से क्या आपको दिखता है। तो यू सी द को एग्जिस्टेंस ऑफ कल्चर, you see the coexistence of culture and civilization at the same time. You see the coexistence of culture and civilization at the same time. Culture और civilization दोनों एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। एंड इट ऑल्सो shows the dichotomy of culture and civilization in India. ये चैप्टर क्या दिखला रहा है? It also shows the dichotomy of कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। अब आपको कल्चर और सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इट ऑल्सो शोज द डाइकोटमी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन इंडिया, गॉट इट। इट ऑल्सो शोज द कल्चर डाइकोटमी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन इंडिया। कैन वी सी दैट देयर इज अ क्रोनोलॉजिकल ओवरलैप ऑल्सो। जब आप कैलकोलिथिक कल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों को कंपेयर करके देखते हो तो दिस स्केच शोज व्हाट, स्केच से क्या पता चलता है, दैट देयर इज अ क्रोनोलॉजिकल ओवरलैपिंग आल्सो, ठीक है। इसको देख के हम ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, देयर इज अ क्रोनोलॉजिकल ओवरलैपिंग आल्सो। यहाँ पे क्या है, एक क्रोनोलॉजिकल ओवरलैपिंग भी है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ओवरलैपिंग है, ठीक है। अच्छा बताओ, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि उस टाइम में जो कल्चर्स एग्जिस्ट हो रही हैं, उस कल्चर में जो मटेरियल्स यूज हो रहे हो, या उस कल्चर के मटेरियल कल्चर, उस कल्चर के जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हो इस सिविलाइजेशन में यूज हो? होता है भैया, ठीक है। मान लो किसी का घर अलवर है, अलवर से आएगा तो वहाँ की लोकल चीजें, किसी गांव से आएगा तो उठा लाएगा, समझ गए, या कुछ ट्रेड एंड कॉमर्स कुछ भी। तो देखो क्या होता है, मटेरियल कल्चर जो होता है ना, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं बहुत पुराने समय की, तो किस बेसिस पे हम समझेंगे कि कैलकोलिथिक कल्चर्स एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, मटेरियल कल्चर वाज आल्सो शेयर्ड। जैसे किसी एरिया में कोई खास कैलकोलिथिक कल्चर है तो वहाँ की पॉटरी कहाँ से मिल जाएगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉटरी कहाँ मिल जाएगी, वहां से मिल जाएगी। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि शेयर्ड मटेरियल कल्चर। So this is also an important point that in Chalcolithic cultures and Indus Valley civilization, we see what a kind of shared material culture also. Example pottery. Example stone tools and implements. Example metal tools and implements. ठीक है, ये भी शेयर करेंगे, ठीक है। Ornaments या bead based necklaces, ठीक है, ये सब। गांव में रहने वाला आदमी भी शहर आता है ना, मान लो कोई कैलकोलिथिक कल्चर से, ठीक है, और वहाँ रहने वाला कोई आदमी, जैसे मान लेते हैं दिस जस्ट वी आर टेकिंग एग्जांपल, रंगपुर, ठीक है, गुजरात में एक जगह है, वहाँ पे एक कैलकोलिथिक कल्चर डेवलप हुई। आई विल लेटर डिस्कस द नेम। एंड लोथल इज अ पोर्ट सिटी इन गुजरात। तो रंगपुर में रहने वाला आदमी कभी लोथल घूमने आ सकता है, आ सकता है ना, और लोथल से भी बीड बेस्ड नेकलेसेस लेके जा सकता है, बीट की बनी हुई कुछ चीजें खरीद के लेके जा सकता है। लोथल से पॉटरी शहर वाला खरीद के लेके जा सकता है अपने गाँव, गांव की चीजों को वहां ला सकता है।
सिंपल सी बात है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, शेयर्ड मटेरियल कल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मटेरियल कल्चर दे विल शेयर। ट्रेड एंड कॉमर्स होगा कि नहीं? यस, ट्रेड एंड कॉमर्स, दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट कैलकोलिथिक कल्चरल सेटलमेंट्स और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद क्या बीच क्या होगा, देयर विल बी ट्रेड एंड कॉमर्स आल्सो। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स आल्सो। ओके, क्लियर? अच्छा, खेती गांव में होती है, शहर के लोग कंज्यूम करते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ कि नहीं? ठीक है, तो दिस माइट बी पॉसिबिलिटी। ठीक है, कि पेरिफेरल एरियाज में, रूरल एरियाज में क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, और वो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज कहाँ लाई जाती हैं, लार्जर सिटीज में, और वहां से एक ट्रेड नेटवर्क हो जहां से ये सारी चीजों को क्या किया जाता हो, सेल किया जाता हो। सो दिस इज शोइंग व्हाट, अ काइंड ऑफ शेयर्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है ना? तो कैलकोलिथिक कल्चर्स और इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों के बीच में एक लिंक है। बट ये हमने एक बात समझी कि हिस्ट्री में कैलकोलिथिक कल्चर पढ़ा क्यों जाता है, हमें पता ही नहीं होता है। एनसीईआरटी की बुक रीड करे पड़े, कैलकोलिथिक कल्चर पढ़ रहे हैं, भूल रहे हैं, आहार कल्चर, बनास कल्चर, जॉर्वे, ठीक है, कायथा, मालवा, बहुत सारी कल्चर्स हैं, हम पढ़े जा रहे हैं और भूले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम कैलकोलिथिक कल्चर्स पढ़ क्यों रहे हैं। देन आई विल डिस्कस विद यू द मीनिंग ऑफ दिस कल्चर। अब आते हैं मीनिंग पे। लेट्स डिस्कस अ फ्यू मोर इंपॉर्टेंट थिंग। मीनिंग, मीनिंग आपने रिलेशन ऑफ कैलकोलिथिक कल्चर्स विद आईबीसी वन एस्पेक्ट यू हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ लेट्स डिस्कस द मीनिंग। मीनिंग क्या है? तो द वर्ड विच वी आर यूजिंग हियर इज व्हाट, कैलकोलिथिक। So here chalcolithic or chalcolithic. Chalcos is called what? Copper. And lithos means what? Stone. Copper plus stone. Relate करो इसको, आसानी से समझ जाओगे। थोड़ा सा साइंटिफिक माइंडसेट से मैथमेटिक्स की तरह हिस्ट्री पढ़ो, पूरी समझ में आएगी। और बहुत रट्टा, मैं कहता हूँ ना कि रट्टा मारना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए समझना जरूरी है। समझना तो टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक परंपरा चली आ रही है, टीचर्स भी उसी परंपरा को फॉलो करते हैं, उन्हें भी समझ में नहीं है, बस याद हो गया, पढ़ाते पढ़ाते बोले निकल लिए। ठीक है, बच्चे भी रटे निकल लिए, तो दिक्कत आएगी इससे। अब देखो कितना आसान है इसको समझना। कैलकोलिथिक, कॉपर प्लस स्टोन। क्या है कॉपर प्लस स्टोन, समझो। सबसे पहले तो यहाँ पे आप एज को ध्यान रखो, जनरल टाइम लाइन। ठीक है, मैंने कहा सबसे पहला फोकस होना चाहिए जनरल टाइम लाइन। स्पेसिफिक टाइमलाइन जो है ना, वो हमें कंफ्यूज करती है। अभी आपको स्पेसिफिक टाइमलाइन भी बताऊंगा और वो भी आपको याद हो जाएगा। जनरल टाइमलाइन तो यही है ना, ओके, 4000 टू 1500 BC। अब एक छोटी सी बात बताओ, कैलकोलिथिक कल्चर के पहले कौन सी कल्चर थी? नियोलिथिक कल्चर। नियोलिथिक कल्चर के पहले कौन सी थी? मेसोलिथिक कल्चर। मेसोलिथिक के पहले कौन सी थी? पैलेलिथिक कल्चर। अब देखो कॉमन कॉन्सेप्ट, पैलियोलिथिक एज में जो भी कल्चरल एलिमेंट्स थे, these cultural elements will be transferred to Mesolithic age or not? Yes or no? बताओ, सारे के सारे कल्चरल एलिमेंट्स कंटिन्यू हो जाएंगे कि नहीं? दे विल बी कंटिन्यूड इन मेसोलिथिक पीरियड और नॉट? हाँ, मैंने बताया था नॉन माइक्रोलिथ स्टोन टूल्स, बड़े पत्थर के बने हुए टुकड़े आज भी हम यूज करते हैं किसी का सर फोड़ने के लिए, मजबूरी में सड़क पे पड़ा हुआ तो उठा लेते हैं, तो वो तो कंटिन्यू हो जाएगा ना मेसोलिथिक में। अच्छा, मेसोलिथिक एज के जो भी कल्चरल एलिमेंट्स थे, विल दे बी कंटिन्यूड इन द नियोलिथिक एज? यस और नो? सारा का सारा कहाँ हो जाएगा कंटिन्यू? नियोलिथिक में। जैसे माइक्रोलिथ कंटिन्यू हो जाएगा, बताया ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री कंटिन्यू हो जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर ये सब कुछ यहाँ डेवलप हो गया, माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री आ गया, माइक्रोलिथ्स आ गया, बरियल्स आ गए, स्टोन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स में एक्सीलेंट स्टोन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स आ गए, ड्वेलिंग कॉम्प्लेक्सेस आ गया, हर्ट्स आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, एनिमल डोमेस्टिकेशन आ गया, सब कुछ यहाँ आ गया, तो इसके बाद वाले फेज में कंटिन्यू होगा कि नहीं? कंटिन्यू होगा ना? तो कैलकोलिथिक कल्चर्स के फीचर्स को अगर आप लिख रहे हो, तो कैन यू इंक्लूड ऑल द फीचर्स दैट वर प्रीवियसली स्टडीड इन नियोलिथिक एज? सारे के सारे फीचर्स आ जाएंगे। यानी कि यू कैन राइट हियर बोल बच्चन पॉइंट्स और द कॉमन पॉइंट्स ऑफ नियोलिथिक एज कल्चरल कल्चरल एलिमेंट्स, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। कॉमन पॉइंट ऑफ नियोलिथिक एज कल्चरल एलिमेंट्स। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं कि अब बताओ कैलकोलिथिक एज की क्या विशेषताएं हैं,
फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपका हो गया एग्रीकल्चर होता था, माइक्रोलिथ टूल्स थे, ड्वेलिंग कॉम्प्लेक्सेस थे, एनिमल डोमेस्टिकेशन था। जो क्रॉप्स वहाँ पे पड़े थे वो क्रॉप्स यहाँ भी बताएंगे, जो एनिमल्स वहाँ पड़ा था वो एनिमल्स यहाँ भी बताएंगे। सब कुछ तो आ गया, बट नया क्या है? व्हाट इज द न्यू फीचर, व्हाट इज द न्यूली एडेड फीचर? दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे न्यूली एडेड फीचर क्या है? व्हाट इज द न्यूली एडेड फीचर? तो न्यूली एडेड फीचर में ये दिख तो रहा है आपको, कॉपर। था क्या कॉपर नियोलिथिक एज में? नहीं था, कॉपर नहीं था। यानी कि यूज ऑफ मेटल, और मेटल में भी कौन सा मेटल? कॉपर। ठीक है, दिस इज द न्यू फीचर। सो व्हाट इज द न्यू फीचर हियर? यूज ऑफ मेटल, दिस इज द न्यू फीचर। ठीक है, नाउ कैलकोलिथिक कल्चर इज व्हाट? अ काइंड ऑफ मेटल यूजिंग कल्चर। ये कैसी कल्चर है? मेटल यूजिंग कल्चर। बट मेटल में आर दे फेमिलियर विद द आयरन? द आंसर इज नो, दिस इज नॉट आयरन कल्चर। यहाँ पे आयरन नहीं है, बट व्हाट वी सी, कॉपर। ठीक है, यानी अब जो टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स बनेंगे, दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि कॉपर टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स भी हो सकते हैं। स्टोन टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स विल बी कंटिन्यूड। स्टोन टूल्स वाला तो कंटिन्यू होगा, दिस इज द कॉन्टिन्यूएंस। ये पहले वाला पॉइंट है जो यहाँ भी कंटिन्यू होगा। प्लस व्हाट इज द न्यू फीचर हियर? कॉपर टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स कैन बी सीन। यहाँ पे कॉपर टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स दिखेंगे। कॉपर आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट क्या होता है? कॉपर ले लिया आपने, इट मीन्स आपको मेटलर्जी की जानकारी है। नाउ यू आर फैमिलियर विथ मेटलर्जिकल एक्टिविटीज। सो दिस फेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट because there is a technical advancement. And what is the technological advancement? The technological advancement is people are familiar with what? Metallurgical activities. अब लोगों को मेटलर्जिकल एक्टिविटीज पता है। ठीक है, अच्छा, कैलकोलिथिक कल्चरल फेज में आ जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों को क्या पता है? द टेक्निक ऑफ मेकिंग एलॉयज। ये भी मेटलर्जिकल एक्टिविटीज में और भी ज्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट, जब आपको एलॉयज बनाने आ गए। तो दिस शोज व्हाट? अ काइंड ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट इन मेटलर्जिकल एक्टिविटीज, कि आपको एलॉय बनाने आ गया। और आपने क्या किया? कॉपर और टिन को मिलाया और क्या बना दिया? ब्रॉन्ज। तो कैलकोलिथिक एज में दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? यू कैन राइट दैट ड्यूरिंग आईवीसी वी सी व्हाट? एलॉयज। ठीक है, दिस इज फर्दर मोर टेक्निकल एडवांसमेंट। ये और भी ज्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट है, दैट यू सी व्हाट? एलॉयज। आपको क्या दिखता है? एलॉयज दिखता है। ठीक है, कॉपर प्लस टिन इज इक्वल टू ब्रॉन्ज, दिस इज द एलॉयज। कॉपर प्लस टिन इज इक्वल टू ब्रॉन्ज। ठीक है, दिस एलॉय वी सी, गॉट इट? कॉपर प्लस ब्रॉन्ज इज कॉल्ड व्हाट? एलॉय। ठीक है, अच्छा, इस पूरे के पूरे फेज में जो पॉटरी होगी, ठीक है, कैलकोलिथिक कल्चरल फेज में, ध्यान रखना, पॉटरी भी पहले से ज्यादा एक्सेलेंट होगी कि नहीं? नियोलिथिक एज की जो पॉटरी है वो कैसी पॉटरी है? प्लेन पॉटरी, यूटिलिटेरियन पर्पसेस से बनी हुई पॉटरी है। यहाँ पे वो पॉटरी तो कंटिन्यू होगी ना। कैलकोलिथिक कल्चर्स में किस तरह की पॉटरी होगी? तो प्लेन पॉटरी, दिस विल बी कंटिन्यूड। आज भी होती है प्लेन पॉटरी, प्लेन पॉटरी, दिस इज कंटिन्यूड। प्लेन पॉटरी तो कंटिन्यू होगा ना। ठीक है, बट क्या इस बात के चांसेस हैं कि कल्चरल एडवांसमेंट हो रहा है और इसमें कुछ ऐसे सेटलमेंट्स हैं जहां पे अर्बन सिविलाइजेशन भी है? तो अर्बन सिविलाइजेशन में डेकोरेटिव पर्पसेस बनेंगे पॉटरी, हाँ, वहां पे डेकोरेटिव पर्पसेस वाले पॉटरी बनेंगे। तो डेकोरेटिव में क्या होगा? पॉटरी पे पेंट हो जाएगा, कलर हो जाएगा, तो पेंटेड पॉटरी। यहाँ पे और क्या दिखेगा हमें? पेंटेड पॉटरी, पेंटेड पॉटरी। ठीक है, एक और पॉटरी का टाइप है, दैट इज कॉल्ड ओसीपी, ऑक्रे कलर्ड पॉटरी, ऑक्रे कलर्ड पॉटरी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में है रेड एंड ब्लैक पॉटरी, तो उसको भी तो हम लिख सकते हैं यहाँ, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रेड एंड ब्लैक पॉटरी। ठीक है ना, तो दिस इज कैलकोलिथिक कल्चर पॉटरीज। ठीक है, ये है कैलकोलिथिक कल्चर्स की पॉटरी। यूज ऑफ क्या हो गया? कॉपर, दैट मेक्स इट स्पेसिफिक। ठीक है, नियोलिथिक से ये अलग हो जाता है for the same reason. Okay, it is different from the Neolithic. Okay, right. Beads of precious and semi precious stones will get or not? मिलेगा भाई। ठीक है,
टेराकोटा फिगरेंस मिलेंगी कि नहीं, क्ले फिगरेंस मिलेंगी कि नहीं, मिलेंगी। तो यू कैन राइट हियर दैट बीड्स, ठीक है, बीड्स ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स, बीड्स ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ये मिलेगा, बीड्स ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स। क्ले फिगरेंस और टेराकोटा फिगरेंस ये मिलेगी कि नहीं, यू विल से दैट यस, क्ले फिगरेंस और टेराकोटा फिगरेंस ये भी मिलेगा, ठीक है, क्ले फिगरिन और टेराकोटा फिगरिन, ठीक है ना, दिस विल गेट। एंड राइट वन साइट दैट इज इनाम गांव इन महाराष्ट्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकोलिथिक साइट। आपको सारे नहीं जानने हैं, अ फ्यू यू शुड नो। तो वन इज व्हाट, इनाम गांव इन महाराष्ट्र is one of the most important Chalcolithic site. Inam Gaon in Maharashtra is one of the most important Chalcolithic site. ये याद रखना। अब आपको मैं बता रहा हूँ कुछ और चीजें। एंड वाई आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यू विल गेट दीज वर्ड्स, ठीक है, तो वहां कंफ्यूजन ना हो, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू डिस्कस। आई एम राइटिंग अ वर्ड हियर दैट इज Chalcolithic कल्चर्स। जहां पे भी वर्ड देखोगे वहां पे कल्चर नहीं लिखा रहता है, क्या होता है, कैलकोलिथिक कल्चर्स और कैलकोलिथिक कल्चरल सेटलमेंट्स। सिंगुलर में नहीं बात होती है, प्लूरल में बात होता है, गॉट इट। या तो आप ये वर्ड पाओगे कल्चर्स, या क्या मिलेगा आपको, कैलकोलिथिक कल्चरल सेटलमेंट्स, सेटलमेंट्स। यानी कि दिस इज नॉट अ सिंगल सेटलमेंट, ये कोई सिंगल सेटलमेंट नहीं है, दिस इज नॉट अ सिंगल कल्चर, ठीक है, सिंगल कल्चरल साइट नहीं है, देयर आर, ठीक है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ कल्चर्स। कैलकोलिथिक कल्चर्स में, ठीक है, एक ग्रुप है। जैसे ग्रुप क्या है, जैसे देखो क्या है, ओके, जैसे आहार, ठीक है, और बनास कल्चर, ये वर्ड मिलेगा आपको इन योर एनसीईआरटी बुक, राइट दिस, आहार और बनास कल्चर, आहार और बनास कल्चर, आहार और बनास कल्चर। इन द सेम वे, ठीक है, आहार ये प्लेस जो है ना दैट इज इन उदयपुर राजस्थान, ठीक है, उदयपुर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान, ठीक है, दिस इज द मोस्ट प्राइमरी साइट, आहार। अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं कि केवल एक विलेज सेटलमेंट मिला है, यहाँ पे आपको मोर देन 60 विलेज सेटलमेंट्स वर फाउंड, कल्चरल सेटलमेंट्स वर फाउंड, छोटे 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 कई सारे पॉकेट्स मिले एक्सकवेशन से। तो उन सब में एक प्राइमरी सेंटर आपने देखा कि सबसे प्राइमरी सेंटर कौन है, ठीक है, और उसके बेसिस पे आपने नाम दे दिया। तो हमने इस पूरे के पूरे एरिया को क्या नाम दे दिया, आ आहार कल्चर। इन द सेम वे राइट दिस कायथा कल्चर, दिस नेम यू विल आल्सो फाउंड, कायथा कल्चर, कायथा कल्चर। कायथा कहाँ हो गया, उज्जैन मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया, उज्जैन एमपी, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया रीजन, सेंट्रल इंडिया रीजन। यहाँ से भी छोटे छोटे कई सारे रूरल कल्चरल सेटलमेंट्स मिले हैं, हंड्रेड्स ऑफ रूरल कल्चरल सेटलमेंट्स, और उन सबको क्या दे दिया गया, एक उनका जो स्पेसिफिक सेंटर है, सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है, उसके बेसिस पे, और सबसे पहली एक्सकेवेटेड साइट है उसके बेसिस पे नाम दे दिया गया कायथा, ठीक है। इन द सेम वे मालवा, ठीक है, मालवा कल्चर, यू विल फाइंड दिस नेम, मालवा कल्चर, ठीक है। तो यहाँ प्राइम रीजन क्या हो गया, मालवा। तो मालवा रीजन में जो कल्चरल सेटलमेंट्स मिले उनको हम क्या कह देंगे, मालवा कल्चर, ठीक है ना, मालवा कल्चर। इन द सेम वे जॉर्वे कल्चर, जॉर्वे कल्चर, जॉर्वे कल्चर, दिस इज आल्सो वन कल्चर, जॉर्वे कल्चर, ठीक है। इन द सेम वे यू विल गेट नेम्स लाइक ओसीपी कल्चर, ठीक है, कहीं कहीं पे पॉटरी के टाइप को स्पेसिफिक मानते हुए कल्चर का नाम दे दिया गया, कह दिया गया ओसीपी कलर, ओसीपी कल्चर। Yani this is a chalcolithic culture but primarily named after the type of pottery that is found there, that is ochre colored pottery। तो आपने एक और नाम दे दिया, और वो नाम क्या है, ओसीपी कल्चर। तो यहाँ पे प्लेस की जगह टाइप ऑफ पॉटरी को बेस बना के नेम दे दिया गया, तो हमने क्या कहा, ओसीपी कल्चर। इन द सेम वे पीजीडब्ल्यू कल्चर, पीजीडब्ल्यू कल्चर, पीजीडब्ल्यू कल्चर, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर।
अच्छा बताओ, इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले वाली भी है कि बाद वाली भी कल्चर्स है? बाद वाली भी कल्चर्स है, ठीक है। अब जैसे आहार में, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे इन द बुक्स यू विल गेट दीज नेम्स, राइट। आहार कल्चर में गिलुंद, बागोर, बालाथल, ऑल दीज आर गिलुंद, बागोर, बालाथल। ये सब रट्टा नहीं मारना है, मैं आपको इसलिए स्ट्रक्चर बनवा रहा हूँ कि दिमाग में एक पिक्चर क्लियर रहे, तो एनसीईआरटी बुक्स को रीड करते समय कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आहार, सॉरी, आहार, बनास, गिलुंद, बागोर, बालाथल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ से ये कल्चरल सेटलमेंट्स मिले। इसी तरह से कायथा में, ठीक है, मालवा में देयर आर सो मेनी नेम्स। अगर इन दोनों को हम मिक्स कर दे तो यहाँ पे भी बहुत सारे नाम मिल जाते हैं। दोनों एमपी रीजन है ना, सेंट्रल इंडिया रीजन। नगदा, कायथा, एरन, नवदा टोली, बहुत सारे सेंटर्स हैं। नगदा, कायथा, एरन, नवदा टोली, नवदा टोली, नगदा, कायथा, एरन, नवदा टोली, दायमाबाद, दायमाबाद, ठीक है, दायमाबाद, इनाम गांव, इनाम गांव, ठीक है। इनाम गांव मालवा कल्चर में भी आएगा, जॉर्वे में भी आएगा, ठीक है। जैसे जॉर्वे में इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, जैसे एक हो गया इनाम गांव, ठीक है। यहाँ आ जाएगा दायमाबाद, दायमाबाद, ये सब जॉर्वे कल्चर में आ गया, ठीक है। देन ओसीपी कल्चर में यूपी, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, ठीक है, ये सब प्लेसेस आ जाएंगे ओसीपी में। यूपी का हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा। फिर पीजीडब्ल्यू कल्चर में देयर विल बी साइट्स लाइक, ओके, गढ़वाल, कुमायूं, वैशाली, उज्जैन। पीजीडब्ल्यू में गढ़वाल, कुमायूं, वैशाली, उज्जैन, गढ़वाल, कुमायूं, वैशाली, उज्जैन एक्सेट्रा, गढ़वाल, कुमायूं, वैशाली, उज्जैन एक्सेट्रा, गढ़वाल, कुमायूं, वैशाली, उज्जैन एक्सेट्रा। अब देखो, ये चार्ट आपको रट्टा नहीं मारना है। अब आपको समझना क्या है, जैसे अगर हम विलेजेस की बात करें, रूरल कल्चरल सेटलमेंट्स की बात करें, तो किसी ना किसी एरिया में तो पाई जाएगी ना भाई, उसका कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। तो उसमें से कभी फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट या मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट या टाइप ऑफ पॉटरी जो मिली है, उसके बेसिस पे उन कल्चर्स का नाम दे दिया गया। और ये सारी की सारी कल्चर्स कैसी है, कैलकोलिथिक कल्चर्स। मेरी बात समझ गए। ओवरऑल जनरल टाइम पीरियड क्या है, कब से कब के बीच में एग्जिस्ट करती है, 4000 टू 1500। बट ये बताओ, सबका टाइम पीरियड एक होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा ना। मालवा का अलग होगा, कायथा का अलग होगा, ठीक है, जॉर्वे का अलग हो सकता है, पीडब्ल्यू का अलग होगा, ओसीपी का अलग होगा। तो हमें अलग अलग नहीं जानना है। मैंने आपको एक जनरल टाइम लाइन बताई कि 4000 टू 1500 hundreds of Chalcolithic cultural settlements were existing, ठीक है। बिफोर इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिफोर अर्बन फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, hundreds of Chalcolithic cultural settlements were existing. After the decline of Indus Valley civilization, hundreds of Chalcolithic cultural settlements were existing. During the urban phase of Indus Valley civilization, in the peripheral areas, hundreds of Chalcolithic cultural settlements were existing. It means, what is the most important part? Coexistence of culture and civilization at the same time. दूसरा महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट, कि बिफोर अर्बन फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्बन फेज अचानक आया नहीं होगा। तो ये अर्बन फेज बना कैसे होगा? दिस माइट बी पॉसिबल बाय द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस कैलकोलिथिक कल्चरल communities. Decline does not mean complete or abrupt decline of Indus Valley civilization. Decline of Indus Valley civilization means decline of urban phase of Indus Valley civilization, and after this, this might be a possibility that many Chalcolithic cultural settlements were existing. शहर तबाह हो सकता है, लेकिन पेरिफेरी पे बने हुए रूरल कम्युनिटीज और विलेजेस क्या होंगे? They will be maintained. So, is there a proximity or link between IVSC and Chalcolithic cultural settlements? You will say that yes, and historians try to find. आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशंस होते हैं, नए नए एक्सकवेशंस होते हैं, उसको वो स्टडी करते हैं और इस लिंक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैलकोलिथिक कल्चरल सेटलमेंट्स। तो हमें ऑप्शनल के, तो हम स्टूडेंट है नहीं कि सबके बारे में अलग अलग पढ़े, तो हमें बोल बच्चन वाले पॉइंट याद रखना है। कैलकोलिथिक कल्चरल सेटलमेंट्स की फीचर्स क्या है? ऑल द पॉइंट्स ऑफ नियोलिथिक विल बी कंटिन्यूड। दूसरा, यूज ऑफ
कॉपर विल बी कंटिन्यूड। तीसरी बात बताओगे कि को एग्जिस्टेंस ऑफ आईवीसी एंड कैलकोलिथिक कल्चर्स एट द सेम टाइम। फिर आईवीसी में बता दोगे ब्रॉन्ज यूजिंग कल्चर, फिर पॉटरी के बारे में बता दोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स है। जैसे ऑकरे कलर्ड पॉटरी है, ठीक है, जो प्लेन पॉटरी है, पेंटेड पॉटरी है, रेड एंड ब्लैक पॉटरी है, सारी पॉटरीज का क्या है, डिफ्यूजन है। यही तो है कैलकोलिथिक कल्चर, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। और ट्रस्ट मी, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कैलकोलिथिक कल्चर क्या है। मैं जीएस वालों की ही बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक चीजें ऑप्शनल वालों को भी नहीं पता होती कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। अब आपको समझ में आया कैलकोलिथिक कल्चर क्या क्यों है। अब आपके दिमाग में एक क्रिस्टल क्लियर चीज है कि रट्टा क्या मारना है, इसमें से कोई भी चीज रट्टा नहीं मारनी। इफ यू अंडरस्टैंड इट विल बी इजियर फॉर यू टू कॉम्प्रीहेंड एनसीईआरटी। ठीक है, आप उसके एसेंस को समझ पाओगे, कहीं अटकोगे नहीं। ठीक है, और टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे जस्ट टेक लेट्स टेक हेल्प ऑफ सम स्लाइड्स आल्सो। ये तो ऐसे हमने समझा, ओके, इसमें देखते हैं, इसमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ लुक हियर। मैंने बोला कैलकोलिथिक कल्चरल सेटलमेंट्स, व्हाट इज द टाइम पीरियड। जनरल टाइमलाइन आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, 4000 टू 1500 BC। आपको ये सारा नहीं याद रखना है, ये सारा आपको नहीं याद रखना है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ क्या नहीं याद रखना है। मेरी बात समझ गया ना, आप इसी के बेसिस पे अपने कॉन्सेप्ट फ्रेम करोगे। अच्छा, कैलकोलिथिक कल्चर्स में एक क्या हो गया, जॉरवे, कायथा, आहार और बनास कल्चर, मालवा कल्चर, ऑकरे कलर्ड पॉटरी कल्चर, पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर। कहीं पे भी ये वर्ड आता है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट कैलकोलिथिक कल्चर्स। जॉरवे में क्या है, टाइप साइट इज जॉरवे इन अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, ये क्या है, टाइप साइट बोलते हैं। जैसे कायथा में टाइप साइट क्या हो गया, कायथा। आहार और बनास में टाइप साइट क्या हो गया, आहार। ठीक है, ये चीज है, ऐसे चलता है। ये टाइप साइट है अहमदाबाद, बट ये महाराष्ट्र में भी आ जाता है, जॉरवे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चलो, अब जैसे क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया, एंड द सिविलाइजेशन इज रिमार्केबल फॉर इट्स यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन इन आर्किटेक्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बिल्डिंग एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं, सेरेमिक्स, वेट्स एंड मेजरमेंट सब इंडस वैली सिविलाइजेशन में, आर्ट्स है, क्राफ्ट्स है। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ, ठीक है, तो देखो यहाँ बताया गया है कि इट इज यूनिक एज इट वाज आल्सो द टाइम दैट सॉ द राइज ऑफ न्यूमरस रीजनल कल्चर्स। यानी कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही थी, उस समय न्यूमरस रीजनल कल्चर्स भी एग्जिस्ट कर रहे थे, जिनमें कैलकोलिथिक कल्चर, नियो कैलकोलिथिक कल्चर, नियोलिथिक कल्चर। नियोलिथिक कल्चर से कंफ्यूज नहीं होना है, आज भी नियोलिथिक कल्चर आपको दिख जाएगा। कहीं राजस्थान के दूर किसी गांव में चले जाओ, वहां देखोगे कि लोग हट्स में रह रहे हैं। ठीक है, पानी भरने के लिए उनके पास मिट्टी के पॉट्स हैं। ठीक है, कुकिंग के लिए वो क्या करते हैं, ईंट पे मिट्टी के पॉट्स को रख के कुकिंग करते हैं। वो तो नियोलिथिक एज में ही रह रहे हैं ना। ठीक है, उनको पढ़ना लिखना आता नहीं है। ठीक है, तो वो तो नियोलिथिक एज में ही रह रहे हैं ना, इतनी सी बात है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, दीज कल्चर्स फ्लोरिश्ड आउटसाइड हड़प्पन यूनिवर्स एज द कंटेम्पररी काउंटर पार्ट्स। ये तो देखो रैंचो वाली लैंग्वेज है जो किसी काम की नहीं है। ठीक है, दिस वे थर्ड कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ चीजों को आसानी से समझो। ठीक है, इजी वर्ड्स में समझो। समझ में आ गया बुक किताबों का क्या इम्पैक्ट है, ऐसे ही किताबों में लिखा रहता है। ठीक है, जिससे तुमको समझ में नहीं आया तो फिर तुम कोचिंग आओ कि सर किताब नहीं समझ में आ रही है, कोचिंग करनी है। ठीक है, चलिए, दीज आर सेंटर्स हियर, कैलकोलिथिक कल्चर सेंटर्स। ठीक है, नाम दिया हुआ है देखो, जैसे दायमाबाद, नेवासा, इनाम गांव। इनाम गांव सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो दीज आर कैलकोलिथिक कल्चरल सेटलमेंट्स। मैप दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे मैप्स हैं। जैसे अभी मैंने आहार बनास कल्चर की बात की, तो राजस्थान में आ जाओ और ये किस सेंटर को दिखला रहा है, आहार बनास कॉम्प्लेक्स। यानी यहाँ पे कोई एक कल्चरल सेटलमेंट नहीं मिला है, बहुत सारे मिले हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया, आहार। जैसे मैंने बागोर, गिलुंड, बालाथल ये नाम दिया था ना, तो ये सब किस में आता है, आहार बनास कल्चर में आता है। गॉट इट, तो ये आहार बनास कल्चर में आता है। ठीक है, ये देखो आहार, बालाथल, गिलुंड, तो ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और यहाँ से जो भी कैलकोलिथिक कल्चरल सेटलमेंट्स मिले हैं, दे आर टर्म्ड एज आहार बनास कल्चर। उन्हें ही हम कहते हैं आहार बनास कल्चर। देखो आहार, बालाथल, जो नेम्स मैंने यूज किए वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, कैलकोलिथिक कल्चरल सेटलमेंट्स में। चलिए, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं, जैसे न्यूज़पेपर में ऐसे आता रहता है
जैसे आहार कल्चर प्रोवाइड्स क्लूज टू लिंक्स बिटवीन हरप्पन्स एंड देयर प्रेडिसेसर्स। अब समझ गए न्यूज़पेपर में कैसे आता है? आहार कल्चर प्रोवाइड्स लिंक्स क्लूज टू लिंक्स बिटवीन आईवीसी एंड इट्स प्रेडिसेसर्स। प्रेडिसेसर्स कौन लोग हैं? कैलकोलिथिक कल्चर्स वाले लोग हैं। और आहार कल्चर क्या है? कैलकोलिथिक कल्चर है। तो कहीं से कुछ एक्सकवेशन हुआ, हिस्टोरियंस ने उस पर लिखना शुरू कर दिया। तो इस तरह से न्यूज़पेपर में राजस्थान विलेज यील्ड्स आर्टिफैक्ट्स ऑफ, ठीक है। अब इससे इसमें भी क्या है, वही वाला जो आइडिया है उसको, जैसे ये देखो, ये क्या है, ब्लैक एंड रेड वेव, ठीक है। इसको कहते हैं मिट्टी का बर्तन का टुकड़ा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप टॉपिक का जो बेसिक्स है वो आपने समझ लिया, ठीक है ना। चलिए, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द सेकेंड टॉपिक। अब इसमें भी फीचर्स होते हैं सारे के सारे कल्चर्स के। जैसे कायथा कल्चर का फीचर क्या होगा, तो यहाँ पे ओसीपी यूज होता है, कॉपर टूल्स है, मिक्स फार्मिंग का एविडेंस मिला है, हंटिंग का एविडेंस मिला है। तो सबका अलग अलग पढ़ के दिमाग का दही नहीं करना है, कॉमन फीचर याद करो, उससे आपका काम चल जाएगा। गॉट इट विपिन? सबका अलग अलग आपको नहीं पढ़ना है, और ऑप्शनल वालों को भी अलग अलग नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा स्मार्टली काम करोगे, ठीक है, तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से सब में कुछ ना कुछ आप लिख के चले आओ, ठीक है। ये ध्यान रखना है। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैंने बताया था देयर आर टू टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। पहला था कैलकोलिथिक कल्चर एंड द सेकेंड वाज मेगालिथिक कल्चर्स। इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं तो पढ़ना ही है इसको। तो लेट्स फिनिश इट राइट नाउ कि मेगालिथिक कल्चर क्या है, ठीक है। मेगालिथिक कल्चर देखो, तो read this. The next topic is megalithic cultures in India. That is the next topic. Read the topic name, megalithic cultures in India. Megalithic cultures in India. ठीक है, इस टॉपिक को भी बहुत अलर्ट होकर समझना है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है मेगालिथिक कल्चर? देखो, मेगा मीन्स व्हाट? बिग, ठीक है, बिग। एंड लिथोस मीन्स व्हाट? स्टोन। So it simply means what? Big pieces of stone. Big pieces of stone. Megaliths means what? Big pieces of stone. But why we are using this word megalith? There is a reason behind this. क्या reason है? समझो इस बात को। जैसे what was the cultural life of Indus Valley civilization people? ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, आप कैसे जानते हो? बाय द एक्सकवेशंस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक्सकवेशंस में इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत कुछ मिला है। द रिमेन्स ऑफ इंटायर सिटी हैज बीन फाउंड, ठीक है, पूरा का पूरा शहर का ही क्या मिल गया? रिमेन मिल गया आपको। तो व्हेन यू फाइंड द रिमेन्स ऑफ एन इंटायर सिटी, तो नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल टू स्टडी। उसको स्टडी करके यू कैन जस्ट पुट योर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है ना। तो आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। पूरा का पूरा शहर ही मिल गया है, पोर्ट सेंटर मिल गया है, मेरी बात समझिए, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स मिल गया है, रोड नेटवर्क मिल गया है, ड्रेनेज सिस्टम मिल गया है। इस सब को स्टडी करके हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की कल्चरल लाइफ के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं, ठीक है। बट देयर आर सम कल्चर्स whose cultural life is predicted only on the basis of the material objects that were found or contained in the graves, ठीक है। यानी कुछ कल्चर्स ऐसी हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी किस बात पे डिपेंडेंट है? उनके जो बरियल्स हैं, ग्रेव्स हैं, ग्रेव्स के अंदर जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स रखे गए थे, जैसे पॉटरी या आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, केवल उसको देखकर हम उनके कल्चर के बारे में बता सकते हैं। हमारे पास वहां पे रिमेन्स ऑफ सिटी और ये सारी चीजें नहीं। यानी अगर उन कल्चर्स के बारे में हमें जानना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई बताओ? ग्रेव्स, ठीक है। और क्या होता था उन ग्रेव्स, द ऑब्जेक्ट्स कंटेन्ड इन द ग्रेव्स, ऑन दैट बेसिस वी यूज टू एक्सप्लेन द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ दैट पार्टिकुलर एज, ठीक है। उसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते थे, इतनी सी बात है। अब वो जो ग्रेव्स जो लोग बनाते थे वो क्या करते थे कि ग्रेव्स को बनाने के बाद ग्रेव्स के ऊपर से जो स्टोन होता है उसको अलग अलग पैटर्न में एडजस्ट कर देते थे, ठीक है। तो उसको पार्टिकुलर वो जो ग्रेव है, ग्रेव के ऊपर अरेंजमेंट ऑफ स्टोन्स इन डिफरेंट स्टाइल, उसी को नाम दे दिया गया क्या? मेगालिथ कल्चर्स इन इंडिया।
तो जब when we are talking about megalithic cultures, it means something, it is associated with the grapes and the objects contained in the grapes. पहले इमेज देखो, then I will discuss with you कि concept है क्या, ठीक है ना? megalithic cultures, ओके, ठीक है। मेगालिथिक कल्चर, जैसे ये मैं आपको इलस्ट्रेटेड इमेज दिखला रहा हूँ, ठीक है? दिस इज आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इलस्ट्रेटेड इमेज। ये एक्यूरेट इमेज तो नहीं है, बट इसको, इसमें बहुत सारे ऐसे ग्रेप्स आपको दिख रहा है, ठीक है ना? ये क्या है? जैसे ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या है? दिस इज अ ह्यूमन बरियल्स और द ग्रेप। इसमें क्या किया गया? बरी किया गया, और उसके बाद से क्या किया गया? स्टोन आर प्लेस्ड इन डिफरेंट स्टाइल। यहाँ पे ग्रेप के ऊपर आपने पहले स्टोन्स को हॉरिजॉन्टल रख दिया, और फिर एक स्टोन को क्या किया? ऐसे, तो वर्टिकल रख दिया, और एक स्टोन को क्या किया? इनके ऊपर हॉरिजॉन्टली प्रेस कर दिया। तो ये ग्रेव है, ठीक है? ये भी ग्रेव है, यहाँ भी ग्रेव है, इसके ऊपर आपने क्या किए? स्टोन्स प्लेस कर दिए। ये भी ग्रेव है, इसके ऊपर आपने क्या किया? स्टोन्स प्लेस कर दिए, ठीक है? ये भी ग्रेव है, इसके ऊपर आपने क्या किया? स्टोन प्लेस कर दिया। ये भी ग्रेव है, इसके ऊपर एक स्टोन ऐसे लगाया, और फिर चारों तरफ से ऐसे हमने स्टोन्स को सर्कुलरली लगा दी। ये भी ग्रेव है, ये भी ग्रेव है, ये सारे के सारे क्या है? ग्रेप्स। और ग्रेप्स के ऊपर मार्किंग के लिए आपने क्या किया? यू हैव पुट स्टोन्स अरेंज इन डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल्स में स्टोन्स को अरेंज करके यहाँ पे लगा दिया। ओके, सो दिस इज द आर्टिस्टिक डिपिक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेप्स और द बरियल्स। ओके, जो, और यहाँ पे अब देखो, इस पूरे के पूरे रीजन में लोगों की कल्चरल लाइफ कैसी थी, ठीक है? लोग एग्रीकल्चर करते थे कि नहीं करते थे? टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स में स्टोन टूल्स जानते थे, आयरन टूल्स की उनको जानकारी थी। ये सब बात की जानकारी हमें कैसे मिलती है? आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस ऑफ दीज ग्रेप्स। और ग्रेप्स के अंदर क्या है? द ग्रेप्स कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स। उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करके हम यहाँ पे कल्चरल लाइफ के बारे में बता सकते हैं। मेरी बात समझ गया ना? दैट इज वाई दीज मेगालिथ्स बरियल्स आर इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वाई दिस इंटायर, यहाँ के पूरे कल्चर को क्या कहा जाएगा? मेगालिथिक कल्चर। अच्छा, ग्रेव के बेसिस पे क्या कह सकते हैं? ये इस पूरे एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन रहा होगा? ये वाला, ठीक है? अच्छा, मेरे जैसे आम लोग इधर दिख रहे हैं, छोटे छोटे पत्थरों में, ठीक है? ये राजा वाजा टाइप का आदमी रहा होगा, ठीक है? ये प्राइम मिनिस्टर रहा होगा, ठीक है? ये देखो, मतलब कहने का मतलब क्या है? अच्छा देखो, ग्रेव कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे मेरे जैसा गरीब आदमी हो तो उसके ग्रेव में बरियल्स में सिर्फ मार्कर मिलेगा, ठीक है? बाकी कोई राजा वाजा हो तो बहुत सारे, हो सकता है ऑर्नामेंट्स मिले, सॉर्ड्स मिले, बहुत सारी चीजें मिले। तो देखो, बरियल्स में जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में बताया जाता है, और यही है मेगालिथिक कल्चर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है मेगालिथिक कल्चर का, तो इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं कि मेगालिथिक कल्चर ऐसा नहीं कि कोई बहुत डिफिकल्ट सी चीज है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना? नाउ पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, देन जरूरत पड़ी तो हम स्लाइड्स की यूज करेंगे, नहीं तो फिर वो बुक ही हो जाता है, ठीक है? चलो अब कॉन्सेप्ट को समझो, क्या है मेगालिथिक कल्चर? मेगालिथ वर्ड का मतलब तो आप समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अब सबसे पहला डिवीजन तो ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट मेगालिथिक कल्चर्स। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट मेगालिथिक कल्चर्स। हम मेगालिथिक कल्चर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो इन नॉर्थ इंडिया एंड इन साउथ इंडिया, सबसे पहला डिवीजन तो ये कर दो, इन नॉर्थ इंडिया एंड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की जगह ज्यादा बेटर होगा कि आप लिख लो इन पेनिनसुलर इंडिया, इन पेनिनसुलर इंडिया, मेगालिथिक कल्चर इन पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है? तो एक हमने लिखा नॉर्थ इंडिया, और दूसरा क्या लिख दिया? मेगालिथिक कल्चर इन पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है? अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मेगालिथिक कल्चर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट विद रिस्पेक्ट टू पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है? ये कल्चर्स का सबसे डोमिनेंट एक्सप्रेशन कहाँ है? पेनिनसुलर इंडिया में ही, ठीक है? नॉर्थ इंडिया में नहीं है। नॉर्थ इंडिया में है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है? पीपल विल बरी देयर डेड वंस, और ग्रेव्स बरियल्स बनाएंगे तो उसके ऊपर स्टोन वगैरह रख देंगे, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे भी है नॉर्थ इंडिया में, बट राइट दिस, ओके? इन पेनिनसुलर इंडिया, राइट, मेगालिथिक कल्चर्स आर very much significant, are very much significant with respect to peninsular India, with respect to peninsular India, ठीक है? पेनिनसुलर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में
ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू पेनिनसुलर इंडिया। नॉर्थ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या देखेंगे, तो देखो जो स्टोन एजेस था ना, लाइक पैलेलिथिक एरा, मेसोलिथिक एरा, नियोलिथिक एरा, ठीक है ना। नियोलिथिक एरा के बाद यहाँ हमने क्या देखा, कैलकोलिथिक एरा। कैलकोलिथिक एरा में इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं ना, ठीक है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे मेगालिथिक कल्चर्स बहुत ज्यादा उनका डोमिनेंट एक्सप्रेशन नहीं है, एंड दीज मेगालिथिक कल्चर्स आर, ठीक है, देख ये क्या है, दे आर को एग्जिस्टिंग, दे आर को एग्जिस्टिंग along नियोलिथिक कल्चर्स एंड कैलकोलिथिक कल्चर्स। इनका को एग्जिस्टेंस है नियोलिथिक कल्चर्स और कैलकोलिथिक कल्चरल सेटलमेंट्स के साथ, ठीक है। देयर को एग्जिस्टेंस विद द नियोलिथिक एंड कैलकोलिथिक कल्चरल सेटलमेंट्स। और को एग्जिस्टेंस में ज्यादा डोमिनेंट एक्सप्रेशन किसका हो जा रहा है बताओ, नियोलिथिक का और कैलकोलिथिक का। इसीलिए अब देखो पेनिनसुलर इंडिया में क्या है, पेनिनसुलर इंडिया में द केस इज डिफरेंट। पेनिनसुलर इंडिया में केस बिल्कुल अलग है, और वो क्या है, तो समझो इस बात को। इन पेनिनसुलर इंडिया व्हेन वी सी द डेवलपमेंट इज लाइक दिस। डेवलपमेंट यहाँ पर ऐसे है, पैलियोलिथिक एरा, मेसोलिथिक एरा, नियोलिथिक एरा, ठीक है। और नियोलिथिक एरा के बाद सीधे जंप कर जाओ कहां पे तुम, मेगालिथिक कल्चरल फेज। यू विल डायरेक्टली जंप टू मेगालिथिक कल्चरल फेज। नियोलिथिक एरा के बाद हम सीधे कहां जंप कर जा रहे हैं, मेगालिथिक कल्चरल फेज, ठीक है। एंड दिस फेज एक्सटेंड्स फ्रॉम पेनिनसुलर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, यही हमें जानना है, 1200 BC to 300 BC, extends from 1200 BC to 300 BC. Many books will write 1500 BC to 500 BC also, ठीक है। अलग अलग डेट्स मिलते हैं जिनसे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मेगालिथिक कल्चरल फेज के बाद अगला चैप्टर जो साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हो जाता है, वो हो जाता है संगम एज। राइट दिस, यहाँ पे अगला चैप्टर क्या हो जाएगा, संगम एज। एंड द टाइम पीरियड ऑफ संगम एज विल बी 300 BC टू 300 AD, ठीक है। ये इस टाइम पीरियड में चला जाएगा संगम एज, 300 BC टू 300 AD। लिखा आपने। नॉर्थ इंडिया में, ओके, there is a linear fashion that is followed here. There is a linear fashion that is followed here in the development of history, and that linear fashion is not seen here, ठीक है। South Indian history does not follow this linear fashion. Here there are some changes. These changes we need to understand. तो यहाँ लिख सकते हो कि South Indian history does not follow, does not follow, does not follow the linear fashion or trend. South Indian history does not follow the linear fashion or trend like North Indian history. यहाँ पे डेवलपमेंट अलग है, इट मार्क्स अ डिफरेंट ट्रेंड। पेनिनसुलर इंडिया, साउथ इंडिया हिस्ट्री मार्क्स अ डिफरेंट ट्रेंड, ये एक डिफरेंट ट्रेंड को मार्क करता है, इट मार्क्स अ डिफरेंट ट्रेंड, इट मार्क्स अ डिफरेंट ट्रेंड। गॉट इट। अब फिर से मैं कुछ चीजें रिलेट करने जा रहा हूँ, लाइक मैथमेटिक्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। अब आपको बताना है, नाउ यू विल थिंक एंड यू विल आंसर कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इट विथ रेस्पेक्ट ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री वी आर डिस्कसिंग कि ये लीनियर फैशन को फॉलो नहीं कर रहा है। पैलेलिथिक एरा, मेसोलिथिक एरा, देन नियोलिथिक एरा, और सीधे इसके बाद हम कहाँ आ गए, मेगालिथ कल्चर फेज पे आ गए, ठीक है। एंड द टाइम पीरियड इज 1200 BC टू 300 BC पीरियड, ठीक है। फिर इसके बाद हम कहाँ आ गए, संगम एज में आ गए, संगम एज में आ गए। द टाइम पीरियड इज, यहाँ देखो, वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम BC टू AD, 300 BC टू 300 AD। कहीं कहीं पे ये 200 AD भी होता है, तो मैंने एक जनरल टाइम लाइन बताया, तो उस डिबेट में नहीं उलझना है आपको, ठीक है ना। 300 BC टू 300 AD याद कर लो तो ज्यादा आसान होगा याद रखना भी, और ये गलत भी नहीं है, ठीक है। 300 BC टू 300 AD ऐसे याद रख लो, ठीक है ना, संगम एज। और संगम एज में हमें रेफरेंस मिलेगा किसका, चोलाज, चेराज,
पांड्यास, इन सब का रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा। संगम एज में वी विल गेट द रेफरेंस ऑफ द रूलर्स लाइक चोलास, चेरास, पांड्यास, पांड्यास। इन संगम एज वन चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लिटरेचर। और देखो ये भी क्या हो गया, सोर्सेस टू रिकंस्ट्रक्ट इंडियन हिस्ट्री, जो मैंने छोड़ा था। मैंने कहा आगे बहुत सारी चीजें मिलेंगी उस टॉपिक से, बट आप फिर कनेक्ट कर पाओगे। तो इन संगम एज द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर इज व्हाट, संगम लिटरेचर। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे। असेंबली, चोलास, चेरास, पांड्यास, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे संगम एज में। और साउथ इंडिया, हियर हिस्ट्री फॉलोज डिफरेंट ट्रेडिशन। ठीक है, इट इज नॉट फॉलोइंग अ लीनियर फैशन, ये अलग है। अब इस चीज को आप कंपेयर करो, जस्ट कंपेयर इट विथ नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री। नॉर्थ इंडिया में जो हमने पढ़ा, नॉर्थ इंडिया हिस्ट्री में जब यहाँ पे मेगालिथिक फेज है, तो नॉर्थ इंडिया में कौन सा फेज है बताओ? 1200 टू बीसी टू 300 बीसी। नहीं, इस फेज में नॉर्थ इंडिया में क्या डेवलपमेंट है बताइए ना आप। वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या है वैदिक कल्चर का? 1500 बीसी टू 600 बीसी, यही है ना? कुछ याद आया? मैंने कहा ना मैथमेटिक्स की तरह पढ़ो, नहीं तो फिर उलझ जाएंगे। और इस ऐसे समझना बहुत आसान होता है, मुश्किल नहीं है। महाजनपद एरा का टाइम पीरियड क्या है? 600 बीसी टू 300 बीसी, यही टाइम पीरियड है ना? क्लियर? अब अगर आप मेगालिथिक कल्चर इन पेनिनसुलर इंडिया देखते हो, तो वो क्या हो रहा है? 1200 बीसी से लेकर कब तक है? 300 बीसी तक। 300 बीसी तक। इट मींस व्हाट? साउथ इंडिया में मेगालिथिक कल्चरल फेज है, और नॉर्थ इंडिया में क्या है? वैदिक कल्चर। और वैदिक कल्चर के बाद महाजनपद एरा में एंटर कर चुके हैं। और महाजनपद एरा क्या है? सेकेंड अर्बनाइजेशन है। महाजनपद एरा क्या है? दिस इज अ स्टेट फॉर्मेशन एरा। स्टेट फॉर्मेशन एरा। तो बताओ कल्चरल डेवलपमेंट वेरी करता है कि नहीं? नॉर्थ इंडिया में वी आर इन अ स्टेज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, this is a state formation era, and in South India this phase is what? Megalithic cultural phase। Megalithic cultural phase। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे संगम एज क्या है? ये हो जाएगा अर्ली स्टेट फॉर्मेशन एरा। जो यहाँ पे है वो चीज कहाँ दिखती है इस फेज में? संगम एज में यहाँ क्या हो जाएगा? अर्ली स्टेट फॉर्मेशन एरा। ठीक है, देखो 600 300 बीसी में नॉर्थ में क्या? अर्ली स्टेट फॉर्मेशन एरा। स्टेट फॉर्मेशन एरा। साउथ इंडिया में चले जाते हो तो 300 बीसी के बाद आ जाओ। 300 बीसी से 300 एडी में क्या है? स्टेट फॉर्मेशन एरा। अच्छा, जब साउथ इंडिया में स्टेट फॉर्मेशन एरा होगा, अर्बनाइजेशन होगा, तो बताओ नॉर्थ और साउथ के बीच में लिंक्स भी स्टैब्लिश होंगे कि नहीं? ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, या प्रेचर्स हो गया, या बुद्धिज्म जैनिज्म हो, कुछ ना कुछ तो लिंक्स स्टैब्लिश होगा ना? तो कल्चर्स जो है ना, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, यहाँ कल्चरल इंटरेक्शन भी देखने को मिलेगा। दैट आई विल डिस्कस लेटर, बाद में मैं इस पे बात करूंगा। तो ये बात आपको समझ में आई? मेगालिथिक कल्चरल फेज हम क्या कर रहे हैं? when we are talking about the peninsular India, okay, okay, this phase 1200 BC to 300 BC is the megalithic cultural phase। इसी को हम क्या कहते हैं? megalithic cultural phase। and these megalithic cultural phase, okay, okay, नियोलिथिक कल्चर के बाद सीधे यहाँ पे क्या आ गया? मेगालिथिक कल्चर। ओके, तो राइट दिस पॉइंट दैट नियोलिथिक कल्चर्स हियर आर सक्सीडेड बाय मेगालिथिक कल्चर। पॉइंट वन, Neolithic cultures are succeeded by megalithic cultures। Neolithic cultures are succeeded by megalithic cultures। ठीक है, Neolithic cultures are succeeded by megalithic cultures। What are megaliths? ठीक है, Neolithic cultures are succeeded by megalithic culture। ठीक है, what is megalith? Write this, megalith, right? Burial sites, burial sites, burial sites or graves, burial sites or graves, ठीक है, are called megaliths। burial sites और graves are called megaliths। ठीक है, burial sites और graves को हम क्या कहते हैं? megaliths कहते हैं। got it? एक यहाँ पे स्केच भी ड्रॉ कर सकते हो, यू कैन मेक द स्केच। ये क्या है? ग्रेव है, और इसके चारों तरफ आपको क्या करना है? बना दो, स्टोन से एनसर्कल कर दो। कौशल 10 बजे आ जाओ, क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? हाँ, 10 बजे आ जाओ।
ठीक है, तो दिस इज व्हाट ग्रेव्स। ठीक है, और ग्रेव्स के बाद क्या करना है, चारों तरफ से इसको ऐसे हमने स्टोन से एनसर्कल कर देना है। ठीक है, ग्रेव्स एनसर्कल्ड विथ बिग पीसेस ऑफ स्टोन, यही क्या है, मेगालिथ। वेरी सिंपल, grapes, write this, grapes that are encircled with big pieces of stone. Grapes that are encircled with big pieces of stone. Grapes that are encircled with big pieces of stones. ठीक है, ये grapes हो गए। अभी grapes में important क्या है, तो this grave is what, grave is containing objects। तो यहाँ पे क्या है, grave contained objects। we see what, grave contained objects। यहाँ हमें दिखता है ग्रेव कंटेंट ऑब्जेक्ट्स, ग्रेव कंटेंट ऑब्जेक्ट्स। which kind of objects, for example different objects or artifacts are found here, different objects or artifacts are found here, for example arrowheads मिल सकता है हमें। ठीक है, उसके अंदर तीर रखा हुआ है। ठीक है, daggers, swords, spear heads, pottery, daggers, swords, spear heads, भाले, pottery, spear heads मिल सकता है, we can get pottery here, dagger, swords, spear heads, pottery, sickles मिल सकता है, sickles मिल सकता है, हसिया। ठीक है, sickles। ठीक है, pottery। इसके बेसिस पे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं बताओ, जैसे मान लो swords है, daggers है, spear heads है, इसका मतलब हंटिंग एक्टिविटीज होती है। ठीक है, अच्छा जो पॉट्स है, अगर पॉट्स में कुछ रिमेन्स मिल जाए हमें, ठीक है, किस चीज का, फूड ग्रेन्स का, हालांकि वो डीके हो जाता है बट आर्कोलॉजिस्ट हैव देयर ओन वे टू फाइंड इट। ठीक है, उसको पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से कुछ फूड ग्रेन्स के रिमेन्स मिल जाए पॉट्स के अंदर, तो वी कैन मेक एन आइडिया कि खेती होती थी कि नहीं होती थी, खेती होती थी तो किन क्रॉप्स की होती थी। अच्छा, पॉटरी का स्टाइल भी हम देख सकते हैं। ठीक है, कि पॉटरी कैसी है, प्लेन है कि ब्लैक एंड रेड पॉटरी है। ठीक है, ऑन दिस बेसिस वी कैन मेक इम्पॉर्टेंट, ठीक है, you can say that idea about the people who are living in these areas and their culture। it means in these cultural habitats, okay, how we can, how we can know about the culture of the people, so we don't know about the culture of the people by their actual settlements। उनका घर नहीं मिला, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स और बिल्डिंग्स नहीं मिली है लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन, वी नो देम बाय देयर ग्रेव्स, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मेगालिथिक कल्चर्स। मेरी बात समझ गया ना, इफ समवन आस्क व्हाई दिस इज कॉल्ड मेगालिथिक कल्चर, यू विल से दैट राइट दिस इन these specific, read this, in these specific cultural settlements, read this, in these specific cultural settlements, in these specific cultural settlements we came to know about the cultural life of the people, we came to know about the cultural life of these people in these specific cultural settlements, we came to know about the cultural life of these people not from their actual settlements like IVC, not from their actual settlements like IVC or Indus Valley Civilization, not from their actual settlements like IVC or Indus Valley Civilization, but we know them by their graves or the objects that were contained in the graves. We know them by their graves or the objects contained in their, in these graves। इन ग्रेव्स में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे हम इनको जान पाते हैं, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड मेगालिथिक कल्चर, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड मेगालिथिक कल्चर। ओके, नाउ राइट दिस, prominent sites, prominent sites, prominent sites of megalithic cultures in South India, prominent sites of megalithic culture in South India। What are the prominent sites of megalithic cultures in South India? One is Brahmagiri in Karnataka. Read this. One site is Brahmagiri in Karnataka. The second important site is Maski in Karnataka। वो क्लास 6 एनसीईआरटी के मैप पे मेगालिथिक साइट्स भी है, देखा होगा ना आपने, वो पीडीएफ है ना जो मैंने आप लोगों को भेजा था।
और आपने बुक डाउनलोड कर ली आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी की इंटरनेट से, मैं ग्रुप में भी आज शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो उसको भी रख लेना। तो मस्की, द थर्ड इज राइट, आदिचन्नलूर इन तमिलनाडु, आदिचन्नलूर इन तमिलनाडु, आदिचन्नलूर इन तमिलनाडु, and the fourth is Junapani in Maharashtra. The fourth is Junapani in Maharashtra. These are the prominent sites. ठीक है? And write one more point. It is believed that the three early kingdoms or states in South India, that is, it is believed that the three early kingdoms or states of South India, that is, Cholas, Cheras, and Pandyas, Cholas, Cheras, and Pandyas, it is believed that three early kingdoms or states in South India, that is Cholas, Cheras, and Pandyas, belong to the last phase of megalithic culture. They belong to the last phase of megalithic culture. They belong to the last phase of megalithic culture. Got it? इसके बाद क्या है? संगम एज ही तो है ना? तो लोगों ने क्या कहा कि माइट बी पॉसिबल कि चोलास, चेरास, पांड्यास, मेगालिथिक खत्म होने वाला था, वो कल्चरल फेज एंड होने वाला था, उस समय ये स्टेट्स इवॉल्व हो रहे थे, संगम एज में स्टेट्स हैं, ठीक है ना? अब जैसे देखो, नाउ आई एम राइटिंग सम पॉइंट्स हियर एंड दिस विल मेक योर कॉन्सेप्ट्स मोर बेटर. फॉर एग्जांपल, आई एम राइटिंग हियर स्केलेटन्स. ग्रेव्स से सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलेगी? स्केलेटन्स मिलेगा, ठीक है? ग्रेव से दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मिल सकती है वो हमें क्या मिल सकती है? पॉटरी, जो मैंने बताया. अच्छा देखो, साउथ इंडिया में ग्रेव से, मेगालिथ से क्या मिला है? आयरन ऑब्जेक्ट्स भी मिला है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट दिस, आयरन ऑब्जेक्ट्स. साउथ इंडिया के ग्रेव, अच्छा देखो, मेगालिथ्स इन साउथ इंडिया, वहां से क्या मिला? आयरन ऑब्जेक्ट्स. और देखो मेगालिथिक कल्चर पे स्टार्ट कब से हो रहा है? 1200 बीसी से. इसके पहले नियर टू 1000 बीसी नॉर्थ में क्या हुआ है? आयरन, यूज ऑफ आयरन हैज बीन फाउंड, ठीक है ना? तो ऐसे आपको चीजों को रिलेट करना, आयरन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आयरन ऑब्जेक्ट्स. अब देखो स्केलेटन से क्या पता चलता है? स्केलेटन को देख के क्या पता चलता है? द पीपल वेर हैविंग दिस सेंस कि हमें अपने डेड वंस को क्या करना है? बरी करना है इन द ग्रेव्स. अच्छा, ग्रेव्स में ये सब रखने की जरूरत क्या है? भाला, तलवार, ये सब रखने की जरूरत क्या है? पॉटरी वॉटरी रखने की जरूरत क्या है? बिकॉज दिस इंडिकेट्स दैट द पीपल माइट बी बिलीविंग दैट this dead person, okay, there might be next life after death. और दूसरी जगह जहां जा रहा है, इसका जहां का टिकट बना हुआ है, वहां पे इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है. he might need these things in the next world. तो इससे क्या पता चला हमें? रिलीजियस बिलीफ के बारे में पता चल गया, कल्चरल बिलीफ के बारे में पता चला. तो पता चला ना कल्चरल लाइफ के बारे में, ठीक है? सो इफ द पीपल आर burying their dead ones, there are skeletons, right? This, it shows the practice of burying dead ones was present. पहली बात, the practice of burying dead ones was present, ठीक है, dead ones को bury करने का practice था. दूसरा, it also indicates towards a belief that it also indicates towards a belief that it also indicates towards a belief that the dead would need all this in the next world, that the dead person would need all these goods in the next future or the next world. It means they are believing the next life after death, ठीक है? In the same way, the second important thing is pottery, and here which pottery is found? Right, this black and red pottery, it was the most popular. ये सबसे ज्यादा मिली है, ब्लैक एंड रेड पॉटरी, ठीक है? Now iron objects मिला है हमें, iron objects, and in iron objects we have got arrowheads, spear heads, okay, hoes and sickles, हसिया वगैरह. तो ये क्या दिखला रहा है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को दिखला रहा है कि नहीं? होज एंड सिकल्स इंडिकेट्स व्हाट? विपिन, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. अच्छा, जो हथियार मिले हैं, एरोहेड्स, स्पीयर हेड्स और सॉल्ट्स, दीज आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स हंटिंग. हंटिंग की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है, हंटिंग की तरफ इशारा कर रहा है. इन द सेम वे, फ्रॉम दीज ग्रेव्स वी हैव फाउंड अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड ट्राइडेंट. एक ट्राइडेंट, एक ऐसा कुछ मेटल का बना हुआ स्ट्रक्चर मिला.
तो लोगों ने बाद में कहा ये तो शिवजी वाला है, ठीक है। तो हिस्टोरियंस लेटर एसोसिएटेड इट विद शिवा कल्ट, शिवा से जोड़ दिया। ट्राइडेंट, रेड दिस ट्राइडेंट, त्रिशूल जैसी कोई चीज मिली है, रेड दिस ट्राइडेंट, इट वाज लेटर एसोसिएटेड विद शिवा कल्ट। इसको आगे चल के शिवा कल्ट से जोड़ दिया गया। दूसरी चीज देखो, एक और इंडिकेशन बताऊं। देयर आर टू काइंड ऑफ टूल्स, एक हो सकता है एग्रीकल्चरल टूल्स एंड द सेकंड इज हंटिंग टूल्स, ठीक है। ज्यादा क्या मिला है, विच वन हैज बीन फाउंड इन लार्जर नंबर, तो हंटिंग टूल्स, हंटिंग टूल्स ज्यादा मिला है। फाइटिंग एंड हंटिंग टूल्स ये ज्यादा मिला है, राइट दिस फाइटिंग एंड हंटिंग टूल्स, ठीक है। एग्रीकल्चरल टूल्स के कंपैरिजन में, ओके, लार्जर नंबर ऑफ फाइटिंग एंड हंटिंग टूल्स हैव बीन फाउंड। एग्रीकल्चरल टूल्स आर लेस इन नंबर, इनकी संख्या क्या है, कम है। एग्रीकल्चरल टूल्स आर लेस इन नंबर, व्हाट डज इट इंडिकेट, एग्रीकल्चरल टूल कम है, इट मींस दैट दे डिड नॉट प्रैक्टिस एन एडवांस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ज्यादा डिपेंडेंसी किस बात पे थी, हंटिंग एक्टिविटीज पे थी, ठीक है। तो देखो एक एक चीज कैसे डिसीफर करती है इसको, कि अगर हंटिंग टूल्स फाइटिंग टूल्स ज्यादा है, एग्रीकल्चरल टूल्स कम है, इट मींस दिस वाज द प्राइम एक्टिविटी। Okay, read this, it indicates that they did not practice an advanced type of agriculture, they did not practice an advanced type of agriculture, it indicates that they did not practice advanced type of agriculture, ठीक है, advanced type of agriculture. Write one more fact, read this, Ashoka's inscriptions also mentions Cholas, Pandyas and Cheras. Ashoka's inscriptions also mentions Ashoka's inscriptions also mentions Cholas, Pandyas and Cheras. Ashoka's inscriptions also mentions Cholas, Pandyas and Cheras. ठीक है? And this might be possible that Ashoka's inscriptions also mentions Cholas, Pandyas and Cheras, and that this might be possible that they were probably in the megalithic phase of material culture. जब वो चोलास, पांड्यास और चेरास की बात कर रहा है अशोका, सो दे वर प्रोबेबली इन द मेगालिथिक फेज ऑफ मटेरियल कल्चर। इसलिए एक बात मैंने कही थी, याद करो, मैंने कहा था कि चोलास, पांड्यास एंड चेरास प्रोबेबली कब है, मेगालिथिक कल्चर के लास्ट फेज में। और दूसरी बात क्या है कि अशोकाज इंस्क्रिप्शंस मेंशंस चोलास, पांड्यास एंड चेरास, दिस एस्टैब्लिश दिस फैक्ट कि वो मेगालिथिक कल्चर के लास्ट फेज में ये मतलब एग्जिस्ट करते थे। अब देखो जो बरियल्स हैं, ठीक है, उनके नेचर के बेसिस पे किस तरह के वो बरियल्स हैं, उसके बेसिस पे उनके डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बरियल्स, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑप्शनल स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कि ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा देखो, साउथ इंडिया में मटेरियल कल्चर डेवलप हो रहा है, नॉर्थ इंडिया में ऑलरेडी मटेरियल कल्चर डेवलप हो चुका है। तो बताओ, विल देयर बी कल्चरल इंटरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, होगा, यस। और दक्कन की कंडीशन क्या है, बीच में है, तो दक्कन विल बी द कल्चरल ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। कल्चरल एलिमेंट्स और द मटेरियल एलिमेंट्स, हाउ दे विल ट्रांसफर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कैसे ट्रांसफर होंगे, तो बाय ट्रेडर्स, बाय मिलिट्री कॉन्क्वेरर्स, बाय जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स, इनसे ट्रांसफर होगा कि नहीं, इनसे नॉर्थ से साउथ क्या होगा, मटेरियल कल्चर और द कल्चरल एलिमेंट्स दे विल ट्रांसफर, दे विल डू ट्रांसफर, ठीक है ना। तो डिटेल्स ऑफ दिस टॉपिक वी विल, डिटेल्स क्या, अब इसके बाद सीधे संगम लिटरेचर हमें पढ़ना है। ओके, नाउ यू आर फैमिलियर विद द मेगालिथिक कल्चर। जैसे कुछ चीजें मैं बताऊं, ये आपको जानना नहीं है, ठीक है, बट इसलिए बता दे रहा हूँ बिकॉज इन बुक्स यू विल गेट द वर्ड्स, तो वहाँ आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे लुक एट दीज स्लाइड्स, ठीक है ना, जैसे डॉलमेंस, डॉलमेंस क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ बरियल साइट, ठीक है। बरियल साइट में देखो, स्टोन्स हैव बीन अरेंज्ड इन डिफरेंट मैनर, अलग अलग तरीके से स्टोन्स को अरेंज किया गया है, तो उनकी अरेंजमेंट के बेसिस पे अलग अलग ग्रेव्स को, बरियल्स को अलग अलग नाम दे दिया गया। जैसे डॉलमेंस क्या है, तो देखो, लार्ज फ्लैट स्टोन स्लैब्स अरेंज्ड अपराइट टू फॉर्म अ बॉक्स लाइक चैम्बर विद वन स्लैब एक्टिंग एज अ रूफ। मैं ये बस कहना चाहता हूँ कि whenever you get these names like dolmens, like dolmenoid cyst, like cairns, हम सब की ये किस चीज की बात कर रहे हैं, ऑल दीज आर द मेगालिथ्स, ये सब क्या है, मेगालिथ्स।
बट वो किस तरीके से बनाया गया उनके अरेंजेस से देखो। cairns are mounds of stones piled over a burial pit or cess. उनके अरेंजमेंट ऑफ स्टोन्स के बेसिस पे, जैसे सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ स्टोन्स है, सो दैट विल बी कॉल्ड स्टोन सर्कल्स कहेंगे. सो दीज ऑल आर मेगालिथ्स. अर्थ burials, this is also megalith. menhirs, this is also what, megalith. ठीक है, रॉक कट टम्ब्स भी है. और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मेगालिथ्स जो है ना, ठीक है, वो जो स्लोप्स ऑफ द हिल्स हैं इस पे भी बनाए जाते थे. मेगालिथ्स वर आल्सो मेड ऑन द स्लोप ऑफ द हिल्स. इसमें क्या मिला है, ग्रेव गुड्स मिला है. इट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द रिचुअल प्रैक्टिसेस. बरियल स्ट्रक्चर को देख के सोशल स्टेटस और वेल्थ के बारे में भी जान सकते हैं, जो अभी मैंने बताया कि जो ग्रेव सबसे, ठीक है, बड़ा था, ज्यादा तरीके से मैनेज था, वो शायद वहां पे हेड करा ट्रैवल. तो देखो, ग्रेव गुड्स गिव्स अस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. इट गिव्स अस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिचुअल प्रैक्टिसेस. ये सब आपको मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है. इंपॉर्टेंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. सो दैट इज कॉल्ड मेगालिथिक कल्चर इन इंडिया. तो मेगालिथिक कल्चर आपको समझ में आया. आई होप दैट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज नाउ क्लियर. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ मेगालिथिक कल्चर के बाद नाउ वी हैव टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, एंड दैट इज इंडस वैली civilization. And this is the first most important topic of your chapter. तो देखो, संगम एज भी हम पढ़ेंगे, चोलास, चेरास, पांड्यास भी पढ़ेंगे, चोलास एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना. इंडो रोमन ट्रेड पढ़ेंगे, चोलास ट्रेड पढ़ेंगे, मेरिट सब कुछ पढ़ेंगे. बट पहले स्टार्ट करेंगे नॉर्थ इंडिया से, एंड देन वी विल एंटर इनटू साउथ इंडिया. ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों की हिस्ट्री को अलग अलग करके पढ़ेंगे, तो ये ज्यादा अरेंज्ड होगा और आप ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाओगे. तो आई एम नॉट मिक्सिंग बोथ ऑफ दीज टू. ठीक है, टिल मौर्यन पीरियड वी विल रीड फर्स्ट नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री. मौर्यन पीरियड के बाद, ठीक है, मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर लूंगा, संगम एज डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, चोला, चेरास, पांड्यास डिस्कस कर लूंगा. देन विल इंटर इनटू द लेटर मौर्यन फेज, और लेटर मौर्यन फेज के बाद, ठीक है, फिर गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, फिर पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज, फिर साउथ इंडिया में आएंगे. और अर्ली मेडिवल में जितनी इंपॉर्टेंट और, ठीक है, जैसे एक होता है पॉपुलर डायनेस्टीज और एक होता है द डायनेस्टीज आर नॉट वेरी पॉपुलर बट इन सम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे आर वेरी मच पॉपुलर. तो यूपीएससी का फोकस कहाँ है, ठीक है. देखो, पॉपुलर डायनेस्टीज को छोड़ के रीजनल डायनेस्टीज में वो डायनेस्टीज जिनका किसी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, दिस दे आर आस्किंग. ध्यान से समझना, ये अभी आप नहीं उस चीज को फिल्टर कर पाओगे बिकॉज यू आर लर्निंग हिस्ट्री, ठीक है, बट आई एम टीचिंग हिस्ट्री, दोनों में फर्क है. दिस इज द एक्सपीरियंस, ठीक है. तो मैंने क्या समझा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि एक तो पॉपुलर डायनेस्टीज हो गए. तो पॉपुलर डायनेस्टीज में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पता होना चाहिए और एरियाज पता होना चाहिए कि कहाँ ये एग्जिस्ट करते थे, इंपॉर्टेंट रूलर्स क्या है. बट इसके अलावा बहुत सारे डायनेस्टीज हैं जो दे आर नॉट वेरी पॉपुलर, बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है. उस केस में आपको क्या करना है, इन द केस ऑफ नॉट वेरी मच पॉपुलर डायनेस्टीज वी विल मेक अ लिस्ट, और इस लिस्ट में से भी क्या करना है हमें, we will select some of the dynasties which are popular in some particular historical context. ठीक है, और उन डायनेस्टीज को थोड़ा सा डिटेल्स में जाके पढ़ लेना है, क्वेश्चन हमारे रेंज से बाहर नहीं होगा. दिस इज द आर्ट ऑफ हाउ वी कैन make an estimate or idea about the questions that may be asked in our exam, and this is the trend of the last 2 to 3 years. We'll do this. Got it? तो ये टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, ठीक है. This we are going to discuss in our next class. One second.